Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, force, work and energy. Learning objectives, force, work, machine and energy. For doing any kind of work, energy is required. We use energy from different sources. Do you know about the main source of energy on the earth? Sometimes we convert energy into various forms. Look at the given picture and discuss how water energy is converted into a useful form of power. देखिए हर दिन काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. हमें एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से भी मिलती है. एंड आपको पता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? इट्स सन. कई बार हम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं वेरियस फॉर्म में. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है क्या चेंज हो रहा है, वाटर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? तो इस चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. Force. In our daily life, we lift, pull or push things. We can move objects and change their shape by applying force. Nothing can move on its own. A force is an external agent, pull or push, which causes a body to start moving or to stop when it is in motion. देखिए हम डेली लाइफ में कुछ चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, है ना? तो हम जैसे चीज़ों को मूव करा सकते हैं, उनकी शेप को चेंज करा सकते हैं. कैसे? जब हम उनमें फोर्स अप्लाई करेंगे. कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं मूव करती है. तो फोर्स आपका एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, यानी जो पुल और पुश करते हैं हम वो कहाँ से करते हैं? हम उस किसी चीज़ पे हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं हम फोर्स को. इसके बाद कोई भी जो बॉडी होती है वो मूव करना है तो स्टार्ट कर देती है या फिर वो स्टॉप हो जाती है. व्हाट कैन फोर्स डू? Force can do the following things. When a force is applied, the object moves in the direction of the force. Example, during football match, players use force to kick the ball. Force can change the direction of a moving object. Example, tennis players apply force to change the direction of the ball for playing a shot. देखिए जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करता है ना? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में. जैसे कि फुटबॉल मैच के दौरान क्या होता है? हम क्या करते हैं? फोर्स का यूज़ करते हैं बॉल को किक करने के लिए. इसी तरह से फोर्स आपका किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. जैसे कि टेनिस प्लेयर क्या करता है? वो फोर्स अप्लाई करता है जिससे जो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन वी वांट टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एग्जाम्पल, while playing with a ball, if you take a catch, you stop the movement of the ball. Force can change the shape of an object. Example, if you apply force to press a rubber ball, it will change its shape. फोर्स आपके मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकता है. जैसे कि आप बॉल से खेलते हैं, है ना? अगर आपने उसको कैच कर लिया तो क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो गया क्योंकि आपने बॉल की जो मूवमेंट है उसको स्टॉप कर दिया. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. जैसे रबर बॉल पे अगर आप अप्लाई करते हैं फोर्स, उसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी. Kinds of force. There are different kinds of force: muscular, mechanical force, gravitational force, elastic force and frictional force. Fact file. Gravity and friction are the two natural forces. These are acting all the time. देखिए remember कि gravity and जो gravitational force and frictional force आपके natural forces हैं and ये हर time act करते हैं. Muscular force. When we use our muscles to do something, it is called muscular force. Animals use muscular force. Mechanical force. When force is exerted by a machine, it is called mechanical force. जब हम अपनी muscles का use करते हैं तो उसे कहते हैं muscular force. जैसे animals अपनी muscular force का use करते हैं. And mechanical force जब force exert किया जाता है किसी भी machine के द्वारा. Gravitational force. The force exerted by Earth is called gravitational force. It pulls things towards Earth. If you throw a ball up in the air, it slows down, stops going up and then comes down. It happens because of the gravitational force of Earth. The Earth attracts all objects towards itself. That is why leaves from a tree fall on the ground and do not go up. Due to gravitational force, we all are able to stand or walk. Otherwise, we all would flow like hydrogen-filled balloon. जो फोर्स हमारी अर्थ एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट ये जितनी भी चीज़ें अर्थ क्या करती है, जितनी भी चीज़ें होती है हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है. जैसे कि आप बॉल को ऊपर फेंकिए हवा में, वो वापस नीचे आ जाएगा. क्यों होता है? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जो है सारी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसीलिए आपके जो ट्री के जो लीव्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं बल्कि ऊपर नहीं जाते. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ना ही तो हम चल पाते हैं ना ही हम खड़े हो पाते. हम क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन फिल्ड बलून होता है ना, वो आपका ऐसे फैलता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो हम भी ऐसे ही फ्लो करते रहते हैं. इलास्टिक फोर्स, tension. The force exerted by elasticity is called elastic force. Elastic force is used to move catapult,
help climbers on rope. It also supports goods in shopping bags. जो इलास्टिसिटी से फोर्स एक्सर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स. ये आपका इलास्टिक फोर्स इसमें अप्लाई किया जाता है कैटापुल्ट में. आपकी जो कठपुतलियाँ होती हैं राइट, ऐसे आपके क्लाइंबर्स जो हैं वो रोप में चढ़ते हैं, और इसके अलावा ये गुड जो सामान को सपोर्ट करते हैं शॉपिंग बैग्स में. Frictional force. The force that slows down a moving object in contact with other surface is called frictional force. Whenever two things rub against each other, there is friction. Frictional force आपका क्या करता है, किसी भी moving object को slow down करता है ना. तो जब भी हम दो चीज़ों को rub करते हैं against each other, वहाँ पे आपका friction होता है. If we push a ball on a rough surface, it stops after a few seconds. The friction resulting from the rubbing of the rough surface in ball stops the movement of the ball. The force of friction is less on a smooth surface. देखिए आपकी बॉल है एंड देन आपका रफ सरफेस है ना. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे रबिंग हो रहा है रफ सरफेस और बॉल का, तो बॉल का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका हमेशा स्मूथ सरफेस से कम रहेगा. रिमेंबर दैट. वर्क. The meaning of work as used in science is different from the everyday use of the work. When you apply force to move things, you do work. According to science, work is done only when the things move. Example, if you can move a cupboard, you do work. But if you cannot move the cupboard in spite of your maximum effort, you do not do work. अब देखिए वर्क क्या है. साइंस में टर्मिनोलॉजी का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है. यानी कि अगर आप डेली कुछ काम कर रहे हैं वो काम अलग है, एंड जो साइंस की जो लैंग्वेज में है वो काम डिफरेंट है. जैसे कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, तो वो आपने वर्क डन किया है राइट. जैसे कि आपके कबर्ड है, आप मूव करा रहे हैं और वो मूव हो भी गई है, तो आपने काम किया है. लेकिन आप कबर्ड को धक्का दिए जा रहे हैं घंटों से, ओके आपको स्वेटिंग हो गया है, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट डन वर्क. नेक्स्ट इज मशीन. Sometimes we find that work cannot be done with our hands. In such cases, we use tools to make the work easier. The tools that make the work easier are called simple machines. Some simple machines that we use in our everyday life are wheel and axle, inclined plane, screws, wedges, pulleys and lever. कई बार क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने हाथों से नहीं कर सकते, और उनको करने के लिए कुछ मशीन्स का यूज़ किया जाता है. तो वो मशीन्स जो हमारा काम थोड़ा सा ईजी कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल मशीन्स. तो हियर आर 6 सिंपल मशीन्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. व्हील एंड एक्सल. The axle is a rod that passes through the center of a wheel and it helps to lift or move object. The most common example where it is seen is a bicycle we ride. Axle देखिए आपका इस तरह से है, ये आपका जो wheel होता है इसके सेंटर में से निकलता है राइट. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में या मूव करने में हेल्प करता है. ये आपका इसका कॉमन एग्जाम्पल है, आपको अपने बाइसिकल में आपने देखा होगा. Fact file. The wheel was the first machine to be invented. Ever since, man has invented several types of machines to make life easier. व्हील आपकी पहली मशीन थी जिसको इन्वेंट किया गया था, और इसके बाद मैन ने जो है बहुत सारी टाइप्स ऑफ मशीन्स को इन्वेंट किया है जिससे हमारी लाइफ ईजी हो गई है. Inclined plane. The inclined plane is a slanting surface which helps to connect a lower level with a higher level. It can simply be a smooth board placed at an angle. You may have seen an inclined plane placed against the back of a truck. Drums and other objects can easily be rolled up into the truck or down onto the ground with the help of an inclined plane. Inclined plane आपका एक slanting surface होता है जो कि किसी भी हम कनेक्ट कर सकते हैं लोअर लेवल को हायर लेवल से. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रक में, जैसे ये सिंपल से ही आपका इंक्लाइन प्लेन है. हम कोई जैसे ड्रम को रोल करना है ऊपर या ट्रक से हमें नीचे रोल डाउन करना है, तो हम इंक्लाइन प्लेन के थ्रू हेल्प से कर सकते हैं. Screws. A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder that is a sharp, pointed, and screws are turned with the help of a screwdriver. As they rotate, they also move forward. So they help us to attach things to each other. अब आपका स्क्रू जो है एक इंक्लाइन प्लेन होता है, बट ये सिलेंडर में रैप्ड होता है, और जो कि इसका शार्प पॉइंटेड एंड होता है. ये देखिए, दिस इज योर स्क्रू. अब स्क्रूज जो है इनको टर्न किया जाता है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से. ये रोटेट करते हैं, तो ये आपके जैसे आप इनको रोटेट करेंगे तो ये मूव आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं. Wedges. A wedge has at least one slanting surface ending in a sharp edge. This helps to cut things. A good example is an axe with which we can cut wood. आपका wedge क्या होता है, इसमें एटलीस्ट एक slanting surface होता है और इसका sharp edge होता है. जैसे कि आपने axe देखा होगा राइट. तो axe आपका एग्जाम्पल है एक wedge का, जैसे कि हम लकड़ी काटने के लिए यूज़ करते हैं.
Pulleys. A pulley uses a grooved wheel and a rope. It makes work easier by changing the direction of force. You may have seen people in villages taking out water from a well using a pulley. आपका पुली देखिए, पुली इस तरह से होता है आपका, राइट। इसमें क्या होता है, आपका एक ग्रूव व्हील होता है, एक रोप होता है। जैसे कि गांव में लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो ये पुली का यूज़ करते हुए करते हैं। Lever. A lever is a long rod used to lift heavy items. We can move big stones using a lever. When we use a spoon handle to open the lid of a tin, the spoon acts as a lever. Lever आपका एक लंबा सा रॉड होता है जिसमें कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम जैसे बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो लेवर का यूज़ करके उनको मूव कराते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप किसी भी बॉटल का या किसी भी ढक्कन को आप खोल रहे हैं स्पून के हैंडल से, तो स्पून एक्चुअली उस टाइम पे आपका लेवर की तरह एक्ट कर रहा है। Energy. We are able to do work only when we have energy. Energy is the ability to do work. We need energy to do everything, right from the basic things like walking, reading and talking to the difficult tasks like lifting, carrying and climbing. Energy exists in various forms such as chemical, mechanical, heat, light, electrical, magnetic and sound energy. Energy changes easily from one form to another. एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी की एबिलिटी काम करने की, ठीक है। हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारी जो बेसिक थिंग्स है, लाइक हमें रीड करना है, हमें वॉक करना है, हमें किसी से बात करना है, या फिर हमें कोई डिफिकल्ट टास्क करना है जैसे कि लिफ्टिंग है, क्लाइंबिंग है या कैरिंग है, इन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एनर्जी आपकी बहुत सारे फॉर्म्स में मिलती है एंड एनर्जी को हम ईजिली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फैक्ट फाइल. There are two major types of energy. Energy present in a resting body is known as potential energy. Energy that a moving object has is called kinetic energy. देखिए दो मेजर तरह की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है एंड कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। Muscular force. The energy stored in the muscles of human beings and animals is called muscular energy. Food is a source of muscular energy. We use muscular energy when we lift or pull or push an object. जो एनर्जी हमारी मसल्स में स्टोर्ड होती हैं या एनिमल्स की मसल्स में स्टोर्ड होती हैं, दैट इज मस्कुलर एनर्जी। अब हम मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं। Solar energy. The sun is a main source of energy on the earth. The energy that we get from the sun is called solar energy. Plants use solar energy to make food in the green leaves. Food has energy stored in the chemical form. We get heat and light energy from the sun. Solar energy can also be used to generate electricity. The solar panel collects sunlight. देखिए सन जो है ना आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का यूज़ कौन करते हैं? सबसे पहले प्लांट्स करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। फूड जो है, फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है केमिकल फॉर्म में। हमें हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है सन से। सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं लाइक ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को कलेक्ट करते हैं। फैक्ट फाइल. Solar energy can be used to cook food. Some houses use solar energy for heating water, turning fans, etc. Solar energy को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। खाना बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ घरों में तो आपके क्या होता है कि हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक हीटिंग वाटर या फैंस को टर्न करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी. Fossils are the remains of animals or plants which died millions of years ago. Dead animals and plants got squeezed and pressed under layers of rocks. They slowly changed into coal, crude oil and natural gas. All these are found underground. They are called fossil fuels. When you burn fossil fuel, you get energy. अब fossil fuel energy क्या है? देखिए fossils actually आपके क्या होते हैं? Dead plants या dead animals के remains जो millions of years ago पहले मर चुके थे and उसके बाद क्या हुआ कि वो squeezed हुए, press हुए under layers of rocks. फिर वो धीरे धीरे चेंज हो गए आपके कोल में, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में, और ये सारे आपके अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। एंड फॉसिल फ्यूल से आपको एनर्जी मिलती है। There are different kinds of fossil fuels. Coal is a fossil fuel, crude oil is a fossil fuel, but we cannot use crude oil as it is. So we make petrol and diesel out of it. Natural gas is also a fossil fuel. We make LPG, cooking gas from it. कोल आपका फॉसिल फ्यूल है, राइट?
क्रूड ऑयल भी आपका फॉसिल फ्यूल है यानी पेट्रोलियम, बट उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, राइट, और उसके बाद से पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन, ये सारे अलग अलग किए जाते हैं। नेचुरल गैस भी आपकी फॉसिल फ्यूल है। Wind energy. The air that blows as wind has energy which is used to work windmills or sailboats. Windmills are very important because they help in generating electricity and pumping out underground water. देखिए जो एयर ब्लो होती है उसमें विंड एनर्जी होती है, राइट, और इस विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है विंड मिल्स को काम कराने के लिए, सेल बोट्स को सेल कराने के लिए। विंड मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। हाइड्रो एनर्जी. Moving water has a lot of energy in it. To use this energy, we build dams. Dams allow the water to fall with force from a height onto turbines. Turbines then move and help to produce electrical energy. Moving water में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इस एनर्जी का यूज़ कराने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। देन वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो हाइट से गिरे एंड देन वो आपके टर्बाइन पे फॉल आउट होते हैं एंड उसके बाद क्या होते हैं कि टर्बाइंस मूव करते हैं जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Fact file. A dam is a huge wall which blocks the flowing water. A dam has gates. When the gates are open, the water rushes down like a giant waterfall. डैम आपका एक क्या होता है, इसमें ह्यूज वॉल होती है जो कि फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है जनरली रिवर का, उसको ब्लॉक कर देता है। डैम में गेट्स होते हैं, तो जब गेट को ओपन किया जाता है तो वाटर जो है मतलब एक जैसे कि आपका वाटरफॉल होता है उसकी तरह फिर पानी आता है। Sound energy. Loud sounds also have energy. Loud thunder can make the window panes in your house rattle. Loud sound जो होती है इनमें भी आपकी energy होती है। Atomic energy. Energy can also be obtained from breaking or joining atoms. This releases a great amount of energy. It is produced in nuclear plants. Atomic energy can also be used to produce electricity. This kind of energy can be very dangerous to produce and use. देखिए एनर्जी जैसे आपका एटम्स को ब्रेक किया जाता है या फिर ज्वाइन किया जा सकता है, उससे भी एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये आपके न्यूक्लियर प्लांट्स में ही आपके प्रोड्यूस होती है। तो एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, बट ये जो एनर्जी होती है काफ़ी डेंजरस है, इसको प्रोड्यूस करना भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना भी बहुत डेंजरस है। Chemical energy. Chemical energy is generated from chemicals. For example, batteries contain chemicals. This energy can be converted to electrical energy. Batteries have to be used carefully. Used batteries when thrown away pollute land and water. आपके जो बैटरीज में होते हैं ना, केमिकल स्टोर्ड होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है उसमें, तो इस एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो बैटरीज आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। यूज बैटरीज को आपने क्या करना है, जब उसको थ्रो करते हैं तो उससे पोल्यूशन और आपका लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। Electrical energy. Electrical energy is used for heating, lighting and for running electrical gadgets such as computers, refrigerators, air conditioners, fans, television, etc. It is produced in thermal power plant, hydropower plant, wind power plant and atomic power plant. इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस लिए यूज़ करते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए या फिर लाइटिंग के लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट चलाने के लिए, जैसे कंप्यूटर्स है, एयर कंडीशनर्स है, फैंस, टेलीविजन एक्सेट्रा। इसके अलावा जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट या फिर एटॉमिक पावर प्लांट में भी ये प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी. Heat is another form of energy. It is obtained from sun or burning wood, coal, oil, gas, etc. It is used for cooking food, heating water, warming a room and even for running a train, bus, scooter, etc. हीट जो है आपकी एनर्जी का फॉर्म है, या आपको सन से मिलती है, या आपका कोई लकड़ी जल रहा है या कोल जल रहा है या ऑयल या गैस आप जो भी जला रहे हैं वहाँ से आपको ये मिलती है। आप उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को हीट करने के लिए, रूम को वार्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। Summary. Force is an external agent which can move a body, stop a moving body, change the direction of movement of a moving body. Force is a push or pull. Work is done when force moves an object through a distance. Work is made easier by using tools. These tools are called simple machines. Energy is the ability to do work. It can be changed from one form to another. देखिए force आपका क्या है, push और pull. फोर्स आपका एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी हेल्प से आप क्या करा सकते हैं, बॉडी को मूव करा सकते हैं, बॉडी को स्टॉप करा सकते हैं या फिर किसी भी बॉडी का डायरेक्शन को आप चेंज करा सकते हैं। वर्क डन कब होता है, जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है थोड़े से डिस्टेंस में, एंड वर्क आपका
जो होता है उसको हम ईजियर कैसे कर सकते हैं, अगर हम टूल्स का यूज़ करें। इन टूल्स को कहते हैं सिंपल मशीन्स। एंड एनर्जी, यू नो, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।